Thank you. Jafar Islam. ऑनरेबल स्पीकर, पैनल ऑफ स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया। मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूं कि मेरी पार्टी की तरफ से आज के टोटल जो 10 डिमांड्स है, 10 डिमांड्स में मैं अकेला ही स्पीकर बात करने वाला हूं, तो मुझे थोड़ा सा वक्त की जरूरत पड़ेगी सर, इसमें बीच में मेहरबानी करके डिस्टर्ब नहीं करें, तो मैं अपने आप ही खत्म करता हूं। मैं एलए मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। I take the opportunity to speak the second batch of demands of grants 2026-27. The demands of grants including municipal administration and urban development, governor and council of minister, general administration and elections, administration of justice, transport administration, backward classes welfare, home administration, panchayat raj, rural development, women, child and disabled welfare sir. आप ये पूरे अगर आप फर्ज करिए जितने डिमांड्स है, इसका अगर आप देखते हैं बजट जो एलोकेट किया गया है 76,493.84 करोड़ से सर। इसका मतलब ये है कि अपना जितना बजट है उसका 23.59% इस पूरे 10 डिमांड्स में सर। दिस 10 डिमांड्स टुगेदर हैव बीन अलोकेटेड ₹76,493.84 करोड़ आउट ऑफ टोटल बजट एक्सपेंडिचर ऑफ 3,24,234 करोड़, जिसका आपको होता सर 23.59% सर। चलिए सर, अब रहा म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन सर। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इज वन ऑफ द की डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एज ऑलमोस्ट 50% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन नाउ लिव्स इन अर्बन लोकल बॉडी सर। अर्बन लोकल बॉडी के अंदर साहब करीब 50% लोग यहाँ पर रहते हैं। रिसेंटली द तेलंगाना गवर्नमेंट टुक 2 मेजर डिसीजन सर विद रिगार्ड्स टू द स्टेट कैपिटल एंड मेट्रोपॉलिटन रीजन सर। Firstly, the government expanded the GHMC by merging 27 urban local bodies and extended its jurisdiction up to the outer ring road, sir. As a result, the area under the expansion GHMC extended to 2,000 square kilometer with a population of 1.34 crore, sir. The number of division in GHMC was doubled to 300 sub, 150 से 300 हो गया, and permanently the delimitation of the division was done sir. The number of zones and circle was doubled with the new civic body comprising 12 zones spreading over 60 circles sir. Honorable Speaker sir, however, as soon as the terms of elected body of the GHMC ended in February 2026 sir, the government trifurcated the expanded into 3 municipal corporation, Cyberabad, Malkajgiri Municipal Corporation and the reorganized GHMC. Now we have 3 municipal corporation in what is known as core urban region up to the ORR. The reconstituted GHMC consists of 150 division spread over 30 circles in 6 zones and part from the core city of Hyderabad. This civic body includes parts of Rajendra Nagar district which are parts of Rangareddy district which are organized into Rajendra Nagar and Shamshabad zone sir. Each of 3 corporations is spread over an area of 650 square kilometer each, and while the GHMC has an estimated population of 65 lakhs and the Cyberabad and Malkajgiri Municipal Corporation have population of 35 lakhs each sir. However, the government grants to the earlier GHMC has now been split among the 3 corporations in the state budget for 26-27 sir. The total allocation of MAUD department is rupees 16,689.23 crores and only rupees 2,772.46 crore has been allocated to the core urban region sir. The Hyderabad Metro Water Supply and Sewerage Board is provided an allocation of 3,305 crore, out of which loan amount of rupees 3,005 crores for capital work and grant of rupees 3,000 crore are allocated for the free water supply up to
20 KL to the poor families. The HMWSSB has not been allocated for grant for meeting the shortfall in its finance as a revenue from the 12.7 lakhs consumer are not enough to meet its expenditure on staff maintenance. I would request the government to allot more grant to the HMWSSB for taking up the maintenance work across the area served by the board. For the metro rail project, the government has allocated rupees 500 crore for clearing land acquisition dues, payment of principal and interest of terms, loans and staff salaries, etc. I would like the government to spell out the time frame for taking up the work for the phase 2A and 2B of the metro rail project consists of 8 corridors. 8 corridors for the length of 162.5 kilometer and estimated cost of rupees 43,848 crore. For this work, a token grant for 600 crores has been made. For the Musi riverfront development, and allocated of rupees 1,500 crores has been allocated for the 26-27, and huge outlay were made in the current year budget also, but there was no expenditure on this project. I hope that work will be started on this project in a big way, as a Chief Minister Saab has accorded priority to Musi riverfront development. For the Quli Qutub Shah Urban Development Authority, rupees 25 crores have been allocated, where the authorities has been assigned various works in the old cities such as Murgi Chowk Market, Megalam Mandi renovation, Sardar Mahal, CPP, everything is there, sir. सर मैं आपके जरिए से हुकूमत से ये पूछना चाहता हूँ सर, खुली कुतुब शाह एक ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया सर, उसको अगर आप 25 करोड़ देंगे सब, तो 25 करोड़ सैलरीज को भी बसने होते। खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ही CPP डेवलप कर रही है सर, चार मीनार पेडेस्ट्रियन प्रोजेक्ट डेवलप कर रही है, जिसकी लागत करीब 300 करोड़ के तो अभी काम होने का है, 25 करोड़ में करो बोले तो कैसा करते साहब? मेरे को यह बात समझ में नहीं आ रही साहब। एक बाजू सीएम साहब बताते कि हम लोग दोस्त है, हमारे को डेवलपमेंट ओल्ड सिटी करना है, ओल्ड सिटी नहीं है, रियल सिटी है, गोल्ड सिटी है। अकबरुद्दीन अवैसी साहब कई मर्तबा बोले साहब, बिल्कुल सही है, आप खुद देखिए कितना इंसाफ ओल्ड सिटी से कर रहे हैं, कितना इंसाफ माइनॉरिटी से कर रहे हैं। आप खुद सोचिए सर, कल माइनॉरिटीज का एक क्वेश्चन था सर, हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे, क्वेश्चन नहीं आया माइनॉरिटीज का, तो माइनॉरिटीज से क्या मोहब्बत है आपको मालूम होता। आज चार मीनार पेडेस्ट्रियन प्रोजेक्ट का जो CPP का क्वेश्चन था साहब, वो भी नहीं आया सर। तो अब आप ये सोचिए कि ये क्या कर रहे हैं, मुझे खुद समझ में नहीं आया। वही बात हो गई, हम तो यही सोच रहे हैं वड्डिंची माँ वाले उंटे ये मोलल गुड़ा कुछ उंटे रेंडू लड्डू एक दूरते, कहाँ का लड्डू लगा है, सो लड्डू खींच ले रहे वैसा दिख रहा सर, ये थोड़ा ही होता लड्डू। फिर क्या है, क्या देते साहब, कुछ देते दिलाते नहीं। ओल्ड सिटी को खाली सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिसेस करते साहब, अच्छे प्रॉमिसेस करते, इसके अलावा कुछ नहीं करते साहब। और एक चीज क्या है साहब, कांग्रेस गवर्नमेंट तो बहुत से प्रॉमिसेस करी सो है साहब। इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, बार बार हमारे पार्टी के फ्लोर लीडर सर हमेशा चार मीनार पेडेस्ट्रियन प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आज अगर वो क्वेश्चन नहीं आया तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं सर, आखिर क्या वजह है नहीं आने की क्वेश्चन? क्या आप करना नहीं चाहते क्या, ये बता दीजिए सर। नहीं करना चाहते तो आज आप 25 करोड़ रुपए खुली कुतुब शाह को दिए, 229.83 करोड़ का अभी काम पेंडिंग है। उसके अलावा जो CPP के अंदर जो दूसरे चीजें हैं साहब, लेइंग ऑफ CC रोड अलॉन्ग विद द वाइडनिंग पोर्शन ऑफ चार कमान शिव टेम्पल टू आगरा होटल प्रपोज है साहब, उसका 31 पे 31 करोड़ का है। उसके अलावा मैं अमाउंट तो नहीं बोलता सर। लेइंग ऑफ CC रोड अलॉन्ग विद द वाइडनिंग पोर्शन ऑफ द मिट्टी का शेयर टू जुलू खाना प्रपोज रोड 30 फीट है सर, वो काम बाकी है सब। लेइंग ऑफ CC रोड 40 फीट से 60 फीट अलॉन्ग विद द वाइडनिंग पोर्शन ऑफ द गुलजार हाउस टू रॉयल फंक्शन हॉल वया पंजेशाह CPP के अंदर आती सर। लेइंग ऑफ CC रोड अलॉन्ग विद द वाइडनिंग पोर्शन ऑफ ट्रैफिक PS चार मीनार टू काली कमान सर 20 फीट की, वो बाकी है सब। उसके अलावा
कन्वर्शन ऑफ द रेस्टोरेशन ऑफ मीर आलम मंडी कमान चार मीनार जोन में सर वो बाकी है सर। कंस्ट्रक्शन ऑफ आइकॉनिक पेडिस्ट्रियन ब्रिज फ्रॉम सालारजंग म्यूजियम टू अफजलगंज लाइब्रेरी एट अफजलगंज टू ऑन मूसी रिवर। सर ये ब्रिज का ऑलरेडी हॉकर्स के लिए ब्रिज बनाने के लिए प्रीवियस गवर्नमेंट ने सैंक्शन दी थी सर, वो काम अभी तक नहीं हुआ सर। उसके अलावा सर फसाड डेवलपमेंट वर्क एट लाल बाजार सर चार मीनार वो नहीं हुआ सर। कंस्ट्रक्शन ऑफ आइकॉनिक पेडिस्ट्रियन ब्रिज ऑन ईस्टर्न साइड ऑफ नया पुल ब्रिज ऑन मूसी रिवर सर वो नहीं हुआ सर। खुर्शीद देवड़ी सर, हुसैन आलम सर, ये हेरिटेज बिल्डिंग्स है साहब, पुराने शहर में हेरिटेज है। आप अगर फर्ज करो तेलंगाना की खूबसूरती अगर चाह रहे सर तो आपको हेरिटेज स्ट्रक्चर्स डेवलप करना बेइंतहा जरूरी है। चार मीनार के पास चार कमान है सर, मछली कमान है, काली कमान है, और भी कमान है सर, उसको डेवलप करना है सर। उसके अलावा काफी चीजें हैं सर, मगर आप उसको करना नहीं चाहते सर। और एक मल्टी लेवल पार्किंग का कॉम्प्लेक्स है सर चार मीनार बस स्टैंड करने, उसको बनाना है। अभी तक आप पीपीपी में कई मरतबा बोले कोई आ रहा नहीं, बना रहा नहीं। हुकूमत तो बनाना चाहिए ना सब, हुकूमत भी नहीं बनाने को तैयार है सब। डेवलपमेंट ऑफ कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रेजेंटली ऑफिस जो है सब उसको कमर्शियल प्राइवेट व्हीकल्स टूरिज्म पार्किंग के लिए बोले सर वो होना है। ओल्ड एमसीएच ऑफिस सर, ओल्ड एनसीएच ऑफिस जो दारुशफा में है सर उसको बनाने के लिए वो भी सीपीपी में है सर। पुराना पुल का पुलिस आउटपोस्ट का जो एरिया है सर उसको बनाना है सर। पुराना पुल आउटपोस्ट 1 और 2 दो है सर उसको बनाना है सर, वो नहीं बना रहे सर। उसके अलावा का जो एग्जिस्टिंग रूम्स, कॉरिडोर, टॉयलेट्स, ब्लॉक, सीटिंग गैलरी इन खुली कुतुब शाह स्टेडियम में, ये सिटी कॉलेज में सब खुली कुतुब शाह स्टेडियम बनके एक जमाना हो गया सब, उसको भी सोचना सब। खुली कुतुब शाह स्टेडियम एक पुराना अच्छा स्टेडियम है सब, अब वो डिलेबरेटिंग कंडीशन में हो रहा सब, उसको बनाना है सर। उसके अलावा मिनी स्टेडियम जो मोहनदास मठ धोबीघाट स्टेडियम गोशामेल कॉन्स्टिट्यूंसी में आता सर उसको भी बनाना जरूरी है सब। रेस्टोरेशन ऑफ 6 कमान है सब, वो एक देखिए सब जो कमान है सब रानीगंज शेख फैज की कमान है सब, छत्ता बाजार है, दीवान देवड़ी है, डबिलपुरा है सब, डबिलपुरा दरवाजा बहुत मशहूर है सब, हुसैन आलम है सब। उसके अलावा और भी ऐसे बहुत से चीजें हैं सर, इसको टेकअप करना बेइंतहा जरूरी है सब। मगर आज की गवर्नमेंट तो यही है सब कि बिल्कुल यही कह रहे हैं कि भाई हम बना रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। पहली चीज तो देखो साहब जितने पुराने फ्लाईओवर्स है वो तकरीबन फ्लाईओवर्स का कंडीशन क्या है, अब उसको भी ध्यान दियो सर। सबसे पहला जो फ्लाईओवर बना है सर, जहां तक कि हमारी नॉलेज में है, पहला वो बेगमपेट का फ्लाईओवर बना साहब। दूसरा फ्लाईओवर जो बना वो डबिलपुरा फ्लाईओवर बना सर, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को अटैच रहता सर। ये बने हुए 80s में बने सर, आज उसका कंडीशन बहुत खराब है साहब, उसको रिपेयर करना बहुत जरूरी है साहब। उसके अलावा दीगर कई फ्लाईओवर्स है साहब, मासाब टैंक का फ्लाईओवर है सर, बहुत दिन हो गया सर। अगर आप निकाल के देखना चाह रहे हैं सर तो ये फ्लाईओवर्स क्या है, अंबरपेट का है 1998 में बना हुआ है, अमीरपेट का है 1999 में बना हुआ है, हफ्शीगुड़े का 99 में, लिबर्टी टू एबिट सर वो 99 में बना हुआ है सब। लकड़ी का पुल सर 2001 में बना सर, उसको भी आपको रिपेयर करने का है सब। और दूसरे ऐसे कई फ्लाईओवर्स है सब। लंगर हाउस का जो फ्लाईओवर है सर वो 2010 में बना सब, उसको भी इंप्रूव करना है सर। आपको ये फ्लाईओवर्स के ऊपर भी तवज्जो देने की जरूरत है सब। आप अगर फर्ज करिए आज हाई सिटी स्कीम्स निकाले सर, आप बिल्कुल सही है सर, अच्छा है, हुकूमत ये चाहती है कि डेवलप करे, बल्कि तो मैं हुकूमत से यही कहना चाहता हूं सर कि हमारी पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब का जो एरिया है चंद्रायन गुट्टा, उसके अंदर प्रपोजल्स दिए हुए गए हैं सब, जो हाई सिटी स्कीम में आते हैं। रोड वाइंडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ 80 फीट रोड फ्रॉम अजीम होटल टू चर्च गेट, शोएब होटल टू बालापुर रोड सर, इसका है साहब। और रोड वाइंडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ 60 फीट रोड फ्रॉम चंद्रायन गुट्टा एक्स रोड टू बारकस वया चंद्रायन गुट्टा पीएस सर। रोड वाइंडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ 60 and 40 feet road from Lucky Star Hotel to Hafiz Baba Nagar via नरखी फूलबाग टू तवक्कल मेडिकल वया चार मीनार जोन में आता सर, ये है सर। उसके अलावा रोड वाइंडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ 100 फीट रोड ऑफ एनएच बैंगलोर हाईवे टू शास्त्रीपुरम जंक्शन सर, वो है सर। रोड वाइंडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ 100 फीट रोड फ्रॉम शास्त्रीपुरम जंक्शन टू इंजन बोली सर। ये सब आपने हाई सिटी के अंदर प्रॉमिस किया है सर, हाई सिटी के वर्क से साहब आप इसको लेना बहुत जरूरी है सर। और इसके अलावा हमारी पार्टी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने खास रिक्वेस्ट किया था साहब, ये
NOC HMDSA land use for budget of amount rupees 10 crores of construction of high school, junior college, women's improvement center at Dargah Barhane Shah Sahab Qibla सर, ये रियासत नगर ईदी बाजार में आता सर, चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी में सर, इसके लिए भी हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, वो भी दीजिए सर। प्रोपोजल ऑफ प्रोवाइडिंग ओवरहेड स्काई केबल कार फ्रॉम 7 टोम्स टू गोलकुंडा सर, ये स्काई केबल कार के लिए सर, ये अगर आप फर्ज करो स्काई कार अगर निकालेंगे सर तो वो बेहतर रहेगा सर, इसको भी देना जरूरी है। ये तमाम के तमाम हमारी पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब कई मर्तबा प्रपोजल भी दिए, हुकूमत से मिले भी और हुकूमत को नुमाइंदा भी करे हैं सर, नुमाइंदगी के ऊपर हुकूमत को इसको तवज्जो देना सर, ये तमाम चीज मैं इसीलिए बोल रहा हूं सर, ये सब पेंडिंग है सब, अगर ये सब चीज होगा तो रियली आपको ओल्ड सिटी से मोहब्बत का पता चलेगा सर। और हम ये समझते हैं कि इसके अंदर आप आके ये करके अगर जाएंगे तो बेटर रहेगा सर। प्रपोजल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मार्केट थ्रू GSMC ऑफ निजाम ट्रस्ट वेकेट लैंड सर, सिचुएशन गोलकुंडा फोर्ट पे है सर, जो सामने गोलकुंडा फोर्ट के जो जगह है सर उसके अंदर हम मार्केट बनाने का बताएं सर, बता के अगर रिलीज पे दे देंगे तो वो भी बेहतर रहेगा सर। उसके अलावा सर प्रपोजल जो दिए थे वाटर रिजर्वर के लिए दिए थे सब अकबर साहब, जो वाटर रिजर्वर आज जरूरत है सब, आज अगर ये वाटर रिजर्वर अगर बेहतर हो जाएगा सब, फीडर लाइन इन नामपल्ली, कारवान, बहादुरपुरा, चार मीनार, याकूतपुरा एंड चंद्रायन गुट्टा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी सर, उसके लिए सर 500 करोड़ रुपए अगर आप दे देंगे तो पूरे रिजर्वर बन जाएंगे और हैदराबाद को पानी बेहतर सप्लाई होगा सर, उसको भी हम चाहते हैं कि आप इस पे भी तवज्जो देना सर। प्रपोजल टू टेकन ऑफ SRDP फेज 2 सब, चंद्रायन गुट्टा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है सब, SRDP के अंदर फेज 2 के अंदर लीजिए सर, उसको भी आप जल्द से जल्द करिए सब। और एक चीज सब, एक लेटर हम सबमिट करे थे, उर्दू एज ए कंपलसरी ऑप्शन लैंग्वेज एज ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल में, ये हमारे को देना जरूरी है सब उर्दू के लिए। जब उर्दू स्टेट की दूसरी से जबान बनी है, सेकेंड लैंग्वेज है सर, तो उसके साथ भी आपको इंसाफ करना जरूरी है, मगर यहाँ पर इंसाफ तो होता नहीं है। हमेशा वादा करते हैं, उर्दू को यही कहते हैं कि बात बड़ी अच्छी उर्दू में करते हैं सर, मगर उर्दू के साथ इंसाफ नहीं होता। तो मैं आपके जरिए से मिनिस्टर साहब और CM साहब को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सर कि आप इसके ऊपर भी तवज्जो दीजिए। जो सैंक्शन एडिशनल फंड ऑफ द रिलीज ऑफ द पेंडिंग बिल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड रैंप ऑफ हजरत मौलाना अली पहाड़ी शरीफ एंड दरगाह हजरत बाबा शरफुद्दीन पहाड़ी, इसका भी है सब, इसको भी आप करके ये रिलीज करिए सब जितने भी बिला है। एंड रिपेयरिंग ऑफ 430 ओल्ड JNNRM बॉम्बे एंड EWS कॉलोनी हाउसिंग इन चंद्रायन गुट्टा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, उसी तरह नामपल्ली में है, कारवान में है, जहां जहां पे भी सर ये JNNRM और वैम्बे के जितने घर है, 2 दिन पहले स्पीच में हमारे साथी MLA माजिद हुसैन साहब भी खास तवज्जो दिलाए सर, अगर हादिसा अगर हो गया तो बाद में अपन क्या करेंगे सर, इसके ऊपर भी तवज्जो देना आपको बेइंतहा जरूरी है सर। हम चाहते हैं कि हुकूमत इसके ऊपर न सिर्फ नोट ले बल्कि पूरी तरीके से इस पे न सिर्फ तवज्जो दे और इसके ऊपर काम करे सर। हमारी पार्टी की तरफ से यही चाहते हैं हम सब, हम आपको सपोर्ट करने जरूर तैयार है, मगर साथ के साथ काम तो होना ना सर। अवाम क्या चाहती है सर, अवाम चाहती है कि काम हो, उसी तरीके से सर जो चंद्रायन गुट्टा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो SRDP के फेज 2 के अंदर 6 लेन बाय डायरेक्शन फ्लाईओवर ग्रेड सेपरेट एट उमर होटल जंक्शन टू शोएब होटल टू मेट्रो फंक्शन हॉल फ्लाईओवर एट ए कॉस्ट ऑफ ₹170 सर, ये भी आपका पेंडिंग है सर। 6 लेन फ्लाईओवर बंडलागुड़ा जंक्शन फ्रॉम नफीस गार्डन टू क्रिस्टल टाउनशिप एट द कॉस्ट ऑफ ₹105 सर, ये भी बहुत जरूरी है सर। बंडलागुड़े का कंस्ट्रक्शन ऑफ डाउन रैम्प टू अवेसी फ्लाईओवर टुवर्ड्स द संतोष नगर एट ए कॉस्ट ऑफ 20 करोड़ सर, उसकी भी जरूरत है सर। रोड वाइंडिंग फ्रॉम चंद्रायन गुट्टा क्रॉस रोड टू बारकस रोड वया चंद्रायन गुट्टा ओल्ड पुलिस स्टेशन एट ए कॉस्ट ऑफ ₹25 करोड़ सर, उसकी भी जरूरत है सर। रोड वाइंडिंग फ्रॉम अजीम होटल शोएब होटल टू चर्च रोड बालापुर, वो भी 70 करोड़ का, उसकी भी जरूरत है सर। रोड वाइंडिंग फ्रॉम तुलसी नगर टू गौस नगर बंडलागोड़ा, उसकी कॉस्ट भी 210 है सर, ये भी होना सर। और इसके साथ साथ साहब एक जमाने से आप भी जानते हैं सर, नेकलेस रोड और खैताबाद फ्लाईओवर भी बहुत ज्यादा ओल्ड है सर, उसको भी मेंटेनेंस की जरूरत है सर। और इसके अलावा सर हमने देखा कि 2 दिन पहले GHMC के अंदर बेशक स्पेशल ऑफिसर भी अपॉइंट हो गए हैं, अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, हम मुबारकबादी देना चाहते हैं सर। जब तक
कोई लोकल बॉडी नहीं बनी, आपके पास पूरा पूरा पावर है सर, आपने 90% इंटरेस्ट वेव ऑफ करा, अच्छा है। मगर मैं हुकूमत से सवाल करना चाहता हूं, हुकूमत से कहना चाहता हूं, तेलंगाना के दूसरे भी म्यूनसिपालिटी से, कारपोरेशन से साहब, उनको भी अगर आप वेव ऑफ कर देंगे आप इंटरेस्ट, तो वो लोग भी 2-3 दिन में बढ़ जाएंगे और अपना रेवेन्यू अच्छे से आराम से बढ़ जाएगा सर। उसको बढ़ाने की जरूरत है सर। और एक चीज सर, अहम मसला जो जीएसएमसी के अंदर फंड्स आते सर, वो फंड्स के लिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, जो हमारे पास बीआरएस और बीपीएस स्कीम थी सर, बिल्डिंग रेगुलराइज स्कीम, पेंडिंग हाईकोर्ट में केस है साहब, आप उसको केस को अगर खत्म कर देंगे साहब, तो पूरे बिल्डिंग रेगुलराइज भी हो जाएंगे, आपको कलेक्शन भी आ जाएगा और अपने पास फंड्स आ जाएंगे, तो अपन काम कर सकेंगे ना साहब। मेरे ये बात समझ में नहीं आती, क्या हमारे पास इतने काबिल लोग नहीं है क्या, जाके परस्यू करके उसको खत्म कराने के लिए साहब, उसको खत्म कराइए साहब। आप अगर उसको खत्म कराएंगे तो उसमें आपको सबसे बड़ा बेनिफिट होगा सर, वो बेनिफिट ये होगा कि वहां पे अगर बिल्डिंग रेगुलराइज हो जाएंगे, उसके बाद में आप टाइट कर दीजिए साहब, उसके बाद में होने मत दीजिए। आज काफी बिल्डिंग्स है, आपको भी कोई पैसा नहीं आ रहा, मगर उन लोग बिल्डिंग में रह के एंजॉय कर रहे हैं ना साहब, आप उसको कैसा भी कराइए, कराए तो आपको सहूलत हो जाती है। और एक अहम मसला यह है सर, एक जमाने से हम तो प्रीवियस गवर्नमेंट में भी बोले थे, नोटराइज डॉक्यूमेंट को ट्रीट करेंगे एज ए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, मगर सर आज तक नहीं हुआ सर, उसका काम करना चाहिए ना सर। जब सादा बैनामा अगर हो जा सकता सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, तो नोटराइज डॉक्यूमेंट पे क्या तकलीफ है सर। नोटराइज डॉक्यूमेंट को करिए ताकि उन लोगों भी अपना जो भी चीज है, अरे भाई अगर किसी को आज जरूरत है, अगर उसके घर में बच्ची की शादी, अगर उन्हें बैंक से लोन लेना चाहता तो डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते सर। आप इसको करिए साहब, खास तौर से साउथ जोन के अंदर नोटराइज डॉक्यूमेंट को रेगुलराइज करना बहुत जरूरी है सर। उसकी वजह ये काफी गरीब लोग रहते सर, गरीबों को अगर आप देंगे तो उसके लिए बहुत सहूलत होती सर। और एक अहम बात यह है सर, आजकल खास तौर से मैं तो चूंकि शहर में जीएचएमसी में रहता हूं तो मैं जीएचएमसी की ही बात करूंगा सर। जीएचएमसी में अभी मौजूदा पोजीशन में सर कॉन्ट्रैक्टर्स काम करने को आगे पीछे कर रहे हैं। हमने उसको इंक्वायरी कराया तो पता चला कि हजारों करोड़ रुपए हमारे बिल आने का है, पहले वो बिल आएंगे तो काम शुरू करेंगे। अरे साहब अगर ऐसा रहेगा तो कैसा होगा सर। और आजकल नए नए नाम्स तो ऐसे निकल गए हैं सर, जब से ये 3 कॉरपोरेशन बन गए सर। पहली चीज तो मेरी एक दुकान है साहब, मैं खुशी खुशी मेरी एक दुकान में 4 दुकान खोल दिया सर, मगर वहां पे ना तो स्टाफ देते ना पूरा काम देते सर। मेरी खुद कॉन्स्टिट्यूंसी में ई मौजूद नहीं है साहब। मैं करीब 3-4 महीने से साहब मैं लेटर दे रहा हूं कमिश्नर साहब को, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं रहा तो साहब पलट के कोई एग्रीमेंट करने वाला नहीं रहता, काम एग्जीक्यूट करने वाला नहीं रहता। एक एससी को इंचार्ज बना दिया, क्या पता मालूम नहीं सर, वो मैडम को शायद वहां पे काम नहीं करना है, उनको एलबी नगर जाना है, तो उन्होंने होना बोल के क्या कर रहे हैं साहब, कामों को डिले करा रहे हैं और रुका रहे हैं ताकि हम लोग उनको भिजा देना। मैडम को रखना चाह रहे सर, मगर ई को दे दीजिए सर, कोई भी ई को है बैठे स्पेशल ऑफिसर साहब, चूंकि हम कमिश्नर साहब को नुमाइंदगी दे दे के थक गए साहब। अब हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं साहब, आपको भी मैंने लेटर दिया हूं सर, इसके ऊपर आप तवज्जो देना जरूरी है। अगर काम अगर रुक जाएंगे सर तो हम आपको नहीं तो किसको बोलेंगे, फिर हम आपको, आप पब्लिक को लेके आप कहने आना पड़ता सर। आप उसके ऊपर भी तवज्जो दीजिए साहब। अब गैर जरूरी कि आप खाली एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बगैर आप निकाल के पूरे सर्कल्स बना दिए साहब, अच्छा करे साहब, हम आपको मुबारकबादी देते हैं सर, हर चीज अच्छी है, मगर साथ में काम तो दीजिए ना सर। काम नहीं दे रहे, स्टाफ नहीं दे रहे सर, उसको देना बहुत जरूरी है सर। इसके ऊपर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं सर, जो न्यू वाटर रिजर्वर के बारे में भी बोला सर, सीवरेज पैकेज गिवन साहब, ये जो प्रोजेक्ट लाइन जो सीवरेज की दिए हैं सर चंद्रायन गुट्टे में दिए सब, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सर। प्रीवियस गवर्नमेंट कारवान के अंदर दी थी इसे प्रोजेक्ट का सर काम, मगर चंद्रायन गुट्टे में जो काम हो रहा सर, उस काम को सर ऐसा है, काम तो चल रहा, कॉन्ट्रैक्टर क्या है सब डिगिंग करके पाइप डालना, फिर रेस्टोरेशन भी उन्हें करना है, मगर कुछ काम करके उन्हें रोक दिया जिससे और रोड खराब हो गए सर। बोलते हैं कि हमको पेमेंट नहीं मिल रहा, तो साहब कुछ ना कुछ करके उन लोगों को कैसा करना है, आप बुलाना, रिव्यू करना, या तो रनिंग बिल देना, या उसको जो भी करना है करना। साहब पब्लिक क्यों सफर होना, इसके लिए हमारे को समझ में नहीं आ रहा सर। इसको आप सफर नहीं हुए वैसा क्या बेहतर कर सकते हैं साहब, उसको कोशिश करिए सर। उसके साथ साथ सर
मेरी याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी सर, काफी लोग जानते भी हैं, ऑफिसरों को भी मालूम है, काफी रिमोट और गरीब एरिया है सर। तकरीबन पूरे नाले वहां से गुजरते सर। सीवरेज एसडब्ल्यू ड्रेन में मिला हुआ है, एसडब्ल्यू ड्रेन सीवरेज में मिला हुआ है। क्यों? कि वहां पे कोई ट्रंक लाइन नहीं है सब सीवरेज की। ट्रंक लाइन का हमने एक प्रपोजल दिया था साहब अकबरुद्दीन अवैसी साहब के थ्रू। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है साहब, जिस तरीके से चंद्रायन गुट्टा और कारवान नामपल्ली को दिए सर, वहां पर भी ट्रंक लाइन सैंक्शन कर दीजिए सर। वंस फॉर ऑल कंप्लीट हो जाता। आप तो जो मूसी प्रोजेक्ट तो बना रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है सर, मगर वो भी करना बहुत जरूरी है सर। हाई सिटी के अंदर रोड वाइंडिंग वर्क सर मैक्सिमम ले लीजिए सर। इसीलिए ले लीजिए आज सर टोली चौकी टू रेती बोली फ्लाईओवर सैंक्शन भी हो गया सर, अंडरपास भी हो गया, एजेंसी भी अलर्ट हो गई, सब हो गई। यहाँ पे हमारे 2 एमएलए बैठे हुए हैं सर, कारवान और नामपल्ली, दोनों एमएलए के उसमें आता सर, मगर अनफॉर्चुनेटली सब अभी तक काम शुरू नहीं हुआ सर। उस काम को भी आपको शुरू करना बहुत जरूरी है सर। कराइए सर, आप अगर करेंगे तो आपका नाम होगा सर, साथ के साथ हम जो मेहनत कर रहे हैं, आपको नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमको भी रहता ना सर। क्या सब अब इतना करके कोशिश करने के बाद भी सब हो जाता, सैंक्शन होता, एजेंसी अलर्ट हो जाती, उसके बाद में काम नहीं होता, तो ये टोटली गलत है सब। इसके ऊपर भी तवज्जो देना है सब। इसके साथ साथ सब और जो दूसरे पॉइंट्स है सर, मैं उसके ऊपर भी आपको बात करूंगा सर। और मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं सर, मैंने कहा सर खुले कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को सब 25 करोड़ से कुछ नहीं होता सब, इमीडिएट एक 200 करोड़ रुपए सैंक्शन करिए सब। 200 करोड़ रुपए आप अगर देंगे तो मैं समझता हूं खुले कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को एक ताकत मिलेंगी सर, और सीपीपी काम करने का, चारमीनार पेडेस्ट्रियल काम करने की सहूलत होगी सर। उसके अलावा सर हमारे पास वहीं पे चारमीनार के पास एक गुलजार हाउस है सर, गुलजार हाउस को भी डेवलप करना जरूरी है। मैंने कहा कि लाल बाजार का फसाड है सर, उसको भी आपको तवज्जो देने की जरूरत है सर। और इसके साथ साथ साहब चंद्रायन गुट्टा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सर मुर्गी नाला आता सर, P8 और P9, ये दोनों को सर डिसिल्टिंग के लिए पता नहीं क्या है, मौजूदा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले क्या नाम्स बनाए, क्या है हमें आइडिया नहीं है सर। 6 मरतबा टेंडर कॉल हुआ सर, अभी तक के कोई टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं किया है। हम ये बोल रहे हैं सर, अभी प्री मानसून को अंदर आप देखें 2-3 बार बारिश हो गई है सर, इसको बिना डिसिल्टिंग के काम कैसा चलेगा सर, उसके ऊपर भी आपको करना है। या तो टेंडर नॉर्म्स वो करना, या नहीं तो आप लोग कराइए। जैसा लास्ट ईयर सब याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आपने डायरेक्ट जीएचएमसी अपने डिपार्टमेंट से नाला डिसिल्टिंग कराने की कोशिश करी। हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं और मुबारकबादी देते हैं, बहुत अच्छा काम हुआ था सर। पहली मर्तबा हमको ऐसा महसूस हुआ कि सिल्ट प्रॉपर निकला, सिल्ट प्रॉपर निकला। वरना क्या होता सर, ये जितने कॉन्ट्रैक्टर्स है, ये जितने कॉन्ट्रैक्टर्स है साहब, ये कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते सर, सिर्फ फ्लोटिंग मटेरियल निकाल के बता देते, उसके साथ साथ हमारी जो इंजीनियरिंग की टीम रहती उन लोगों हर हिसाब से सर्टिफिकेट दे देते सर। मगर मैं ये कहना चाहता हूं सर, नाले को प्रॉपर डिसिल्टिंग अगर आप करेंगे तो पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं होता। लास्ट ईयर याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में नाला डिसिल्टिंग प्रॉपर हुई, एसडब्ल्यू ड्रेन प्रॉपर डिसिल्ट हुआ, तो लास्ट ईयर कोई वाटर स्टैग्नेशन नहीं था। मैं मुबारकबादी देना चाहता हूं हमारे डिपार्टमेंट को, और जो जो लोग उसके अंदर काम करें उनको भी मुबारकबादी देना चाहता हूं सर। और एक चीज सर, ये जो मैंने कहा कि कई बार टेंडर को कॉल करे तो उसके बावजूद भी नहीं हो रहा, जिसकी तरफ से क्या हो रहा साहब, नाले जब भरे हुए रहते ना सर, तो पूरा वाटर पोल्यूटेड हो जाता सर। वाटर जब पोल्यूटेड हो जाता ना सर, तो वो टाइम के ऊपर पब्लिक को काफी दिक्कत होती है सर। उसके ऊपर भी आपको तवज्जो देना है सर। सर हेल्थ और सैनिटेशन की मैं बात करना चाहता हूं सर। गार्बेज लिफ्टिंग का जो सवाल है सर, एक प्राइवेट एजेंसी को दे दिया सर। प्राइवेट एजेंसी सिर्फ और सिर्फ गार्बेज लिफ्टिंग प्रॉपर नहीं करती सर। आप अगर देखें, आए दिन आप लोग को भी मालूम है कि फोटोज भी आते हैं, गार्बेज लिफ्टिंग प्रॉपर नहीं हो रही सर। हम राम की को जो दिए हैं, राम की का एक आप रिव्यू करके उसके ऊपर एक्शन लेना जरूरी है सर। अगर फर्ज करो नहीं लेंगे, मैं कंप्लेंट करा तो सब आके उठाते, उसके बाद में नहीं उठाते। अरे साहब ये क्या है साहब,
कई के लिए दिए, आप लोग का क्या हिसाब से दिए वो तो सोचो सब। आप दिए बहुत अच्छी बात है सब। और पहली चीज तो क्या सब, हमारी पुरानी जो गवर्नमेंट थी वो बिन फ्री सिटी करके, और पहले क्या था सर, बिन के अंदर कचरा रहता था, बिन फ्री करने के बाद पूरा 50% ऑलमोस्ट 75% रोड्स कवर हो जा रहे थे सर। तो बिन फ्री सिटी करे थे। बाद में अब आप लोगों की पॉलिसी है कि बिन्स लगाने का है, मगर अनफॉर्चुनेटली बिन्स भी कौन लगाने को दे दिए आप लोग, वो भी राम की को दे दिए। राम की वाले कैसा बिन्स लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग कराओ साहब। मॉनिटरिंग करके आपको अगर फर्ज करिए, अगर बिन्स को सही करना है और आप उसको मॉनिटरिंग करना है, तो आज कोई भी टूरिस्ट आंदो साहब या कोई भी आंदो, सबसे पहले दो ही चीज देखता साहब, सैनिटेशन अच्छा होना, प्रॉपर स्ट्रीट लाइट रहना, जिसकी तरफ से आपका अपने स्टेट का, अपनी सिटी का नाम होता सर। मगर यहां पे दो चीज की ही मेजर प्रॉब्लम रहती सर। तो आप बिन्स प्रोवाइड करिए सब, लिफ्टिंग को पूरा स्ट्रीमलाइन करिए सब, और रहा मसला स्वीपिंग का सब, स्वीपिंग में सब जितने पुराने स्टाफ रिटायर हो गए या मर गए, उनका फुलफिल अभी तक नहीं हुआ साहब। और एक लेडी डेली करीब साहब, जितनी मुझे नॉलेज है, 1.5 किलोमीटर स्वीपिंग करना। अरे साहब, मेरे घर में घर को पूरा नहीं स्वीप करती साहब, एक घर में 3-3 लोगों को रखना पड़ता। 1.5 किलोमीटर स्वीपिंग कहां से करती साहब, स्टाफ की कमी है। आज इधर करी तो एक हफ्ते के बाद उधर करती साहब। इसके लिए भी देखिए, आप एक्स्ट्रा स्वीपिंग लेबर दीजिए और उसको भी मॉनिटरिंग करिए साहब, मॉनिटरिंग करके काम कराइए साहब। काम कराएंगे तो बेहतर रहेंगे। स्वीपिंग अच्छी होना बहुत जरूरी है साहब। तो स्वीपिंग स्टाफ को बढ़ाइए साहब, स्पेशल ऑफिसर सब से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं साहब। और एक चीज सर, लास्ट टाइम डोर टू डोर कलेक्शन के लिए सर स्वच्छ ऑटो रखे थे सर। ये स्वच्छ ऑटो दिए हुए करीब 7-8 साल हो गए सर। इन लोगों को सर सैलरी नहीं देते हैं, वो लोग डोर टू डोर कलेक्शन में लेते हैं, मगर उनको जो आता है सर वो लोग अपनी जिंदगी गुजारने में खत्म कर देते हैं। ऑटोस का कंडीशन स्वच्छ ऑटो का ऐसा हो गया सर, अब होता कि जब होता कि कई ऑटो खराब हो गए तो वो लोग अभी लेने नहीं आते सर। तो एक एक घर में जो लेने का डोर टू डोर कलेक्शन है सब, उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग करिए सब। नए सच ऑटो दीजिए सर। और जो बैलेंस छोटे हैं सर, पहले ट्राई साइकिल्स देते थे साहब, ट्राई साइकिल देके आप उसको कैसा ठीक कर सकते साहब, वो करिए। और मेरी तो एक छोटी सी सजेशन है सर, ये CRMP रोड्स दिए थे साहब पहले, अभी शायद टेंडर हो गया है। जो CRMP रोड्स है उसको भी प्राइवेट स्वीपिंग क्यों नहीं कर देते साहब, कर दे के आप पूरा उसको एक सिस्टम करके आप एग्रीमेंट करके अच्छे से उसको वो करिए सर। करेंगे तो बेटर रहेगा सर, आपका भी नाम होगा जी। नहीं दिया, मैं वही तो बोल रहा हूं ना, CRMP को अभी नहीं दिए, CRMP को दीजिए। वो जो रोड्स थे उसको प्रॉपर स्वीपिंग करने के लिए करिए, या तो आप CRMP को दीजिए या नहीं दिए, उससे हमारे को मतलब नहीं है सर, ये करिए। अब मेन अहम सर जो मॉस्किटो का है सर, हमारे को क्या है सर, मॉस्किटो के लिए फॉगिंग देते। फॉगिंग भी कैसा दे रहे हैं, पहले क्या करते थे साहब, एक कारपेंटर डिवीजन के अंदर एक मशीन रहती थी सर, उसको अगर दिए तो जहां पे भी जरूरत है उसको फॉगिंग कराते थे। अब वैसा नहीं रहा सर, कारपेंटर डिवीजन के अंदर हफ्ते में एक बार आता सर, आने के बाद बाकी 3-4 लोगों को जो रखते वो एक एक डिवीजन में जाते सर। वैसा मत करिए साहब, डेली एक डिवीजन में एक दे दीजिए। अरे अम्मा बोलना जरूरी है, अम्मा नहीं बोलेंगे तो पब्लिक को भी क्या मालूम होगा, आपको भी क्या मालूम होगा। मैं अकेला स्पीकर हूं अम्मा, आप समझो प्लीज। तो आप उसको भी दीजिए। और मैं स्पीकर साहब से पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, मैं अकेला हमारी पार्टी से बात कर रहा हूं, 10 इश्यू है और ये जो है ये मेजर इश्यू है, आपसे हमारे से रिलेटेड है। GHMC हो या कॉर्पोरेशन हो, उसका अहम रूल रहता सर। क्यों अहम रूल रहता, मैं वो भी आपको एग्जांपल दे देता हूं। जब हम पैदा होते तो बर्थ सर्टिफिकेट GHMC देते, हम दुनिया से चले गए तो डेथ सर्टिफिकेट भी GHMC देती। तो हमारा रोना इनको नहीं रोएंगे तो किसको रोएंगे, हमको तो बोलना जरूरी है ना सर। हम इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। तो डीसिल्टिंग के अंदर सब मैंने जैसा कहा आपको, नाले को प्रॉपर आपको डिसिल्ट करिए, और जितने नाले जो वाइडनिंग की जरूरत है साहब, वो नालों को वाइडनिंग कराइए साहब, ताकि आप मूसी तो बना रहे, नाला अगर वाइडनिंग होगा तो हर नाले के अंदर भी आप STP लगा सकते सर। STP लगाएंगे तो आपको सहूलत होंगी सर। और उसके अलावा सर जो कैच पिट रिपेयरिंग होती सर,
जो जीएचएमसी में आता है जिसको स्क्वायर मैनुअल रहता है उसको कैच पिट बोलते हैं सर, कैच पिट रिपेयरिंग को भी देना जरूरी है सर। उसके लिए भी हम आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर आपके थ्रू हुकूमत से, तो उसके ऊपर भी तवज्जो दीजिए सर। और उसके अलावा मैं सर लास्ट रेनी सीजन के बाद में मेरी तरफ से सर कमिश्नर जीएचएमसी को एक लेटर दिया था सर, रेनी सीजन में जो रोड बैडली डैमेज हो गए सर उसको वापस बनाने के लिए लेटर दिया सर, मगर वो प्रपोजल आज तक सैंक्शन नहीं हुआ सर। ऐसी मेरे साथ 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 हमारे साथियों के भी पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बहुत जरूरी है सर। तो मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं सर, जो बैडली डैमेज रोड है ना सर उसको एक हमेशा सर, पहले ये होता था सर रेनी सीजन के बाद में जो बैडली डैमेज रोड रहती थी उसका एक फंड दिया जाता था, वो फंड के लिए आपको काम करना जरूरी है सर, और वो नहीं हो रहा सर, तो उसके लिए भी आप काम करिए सर। और एक चीज सर, मेंटेनेंस के लिए जो भी होता सर, आप मेंटेनेंस में जो जरूरत है वो तो देना जरूरी है ना सर। और एक चीज सर, ये जो ग्रेवयार्ड्स है सर, ग्रेवयार्ड्स को भी बनाना जरूरी है सर। ग्रेवयार्ड्स के अंदर चाहे वो हिंदू ग्रेवयार्ड हो या मुस्लिम हो या कोई भी हो सर, उसको भी बनाना जरूरी है सर। और एक चीज सर, मलकपेट याकूतपुरा चंद्रायन गुट्टे का एक स्टील ब्रिज बन रहा सर, जो पिछले 5 साल से बन रहा, लास्ट गवर्नमेंट में सैंक्शन हुआ था सर, अभी तक भी वो काम हो रहा। जहां तक मेरी नॉलेज है सर, पहले वो 400 करोड़ का था, अब उसको बढ़ा के 500 करोड़ कर दिए। आप बढ़ा के 500 करोड़ 600, उससे मतलब नहीं है, वर्क तो कंप्लीट होना ना सर, वर्क कंप्लीट नहीं हो रहा। आखिर वर्क कब कंप्लीट करेंगे आप वो बोलिए सर, वो नहीं बोलते हैं सर। इसके अलावा सर स्ट्रीट लाइट मैंने जैसा कहा, आज सब ग्लोइंग परसेंटेज कितना है जरा देख लीजिए साहब। स्ट्रीट लाइट को एक कॉन्ट्रैक्टर को दिए थे पुराना, वो तो बराबर किए नहीं, मेंटेनेंस के लिए लाइट देते नहीं सर। अब पूरी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सर मेंटेनेंस के जो लाइट आते 35, 40, 50 मेंटेनेंस आते, कहां से ग्लोइंग होंगी साहब? ग्लोइंग मिनिमम 98% होना चाहिए, मगर 98% ग्लोइंग तो होती नहीं है सर। बहरहाल चलते रहता, अपने हिसाब से काम करते सर। तो मैं आपके जरिए से ये कहना चाहता हूं, स्ट्रीट लाइट का मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है, ग्लोइंग भी पूरे जीएचएमसी के अंदर प्रॉपर 98% ग्लोइंग होना सर, मेंटेनेंस साथ के साथ होना, और इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू एलईडी लाइट सर, नई एलईडी लाइट बनाना सर। और उसके साथ साथ आजकल सर मॉडर्न लाइटिंग का दौर है सर, मॉडर्न लाइटिंग के प्रपोजल देते हैं सर, उसको भी पूरा करिए सर। और जैसा जीएचएमसी के अंदर मार्केट्स है सब, आप जानते हैं सब, मुर्जी चौक का मार्केट पेंडिंग है सब, मीरालम मंडी की मार्केट का है सब, बेगम बाजार है, ऐसे कई मार्केट्स है सब। हर मार्केट को आपको तवज्जो देके बनाना जरूरी है सर। इसके साथ साथ सब जीएचएमसी जो है ना सर, वो बस्ती दवाखानों का काम करती सर। बस्ती दवाखानों के लिए जो जीएचएमसी काम कर रही है ना सर, उसके ऊपर सर बस्ती दवाखानों के अंदर प्रॉपर वहां पे स्टाफ नहीं है सर, मेडिसिन नहीं आता सब, उसको करना है सर। और एक चीज सर, रोड वाइंडिंग, मैंने आपको कहा कि रोड वाइंडिंग शहर हैदराबाद में जहां जरूरत है वहां पे आज की तारीख में रोड वाइंडिंग करना जरूरी है। उसी तरह हमने पुराने शहर में काफी रोड वाइंडिंग के प्रपोजल दिए, हमारी पार्टी के जानिब से, हमारे पार्टी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी काफी प्रपोजल दिए, हम लोग भी दिए सर। रोड वाइंडिंग, कई रोड वाइंडिंग हुए सर, मगर मैं फिर आपको एक रिपीट करना चाह रहा हूं सर, रोड वाइंडिंग तो हो रही, उसके बाद में सर आप उसके पोल्स नहीं हटाते और प्रॉपर नहीं करते, जिसकी तरफ से सर, जिसकी तरफ से वापस जो रोड वाइंडिंग करे, या तो पार्किंग हो रही या नहीं तो उन्हें ही सामने से इंक्रोचमेंट टेम्पररी कर ले रहा साहब, तो उसके ऊपर आप रोड वाइंडिंग के ऊपर जो टाउन प्लानिंग के लोग हैं उनको आंसरेबल करना जरूरी है सर। उनको आंसर साहब, इधर देखिए 10 फीट रोड वाइंडिंग होती, उन्हें बाद में 10 फीट के बजाय 8 फीट पे बना लिया, तो क्या करते साहब? अरे जब उसको पूरा पैसा दिए तो टाउन प्लानिंग वालों की जिम्मेदारी नहीं है क्या साहब? टाउन प्लानिंग वाले भी करना जरूरी है सर। उसी के साथ साथ सर स्पोर्ट्स का जहां तक मामला है सर, शहर हैदराबाद में काफी ग्राउंड है सब, हमारे यहां भी ग्राउंड है सब, संतोष नगर का ग्राउंड है सब, 7B ग्राउंड है, उसी तरीके से हमारे साथ वालों के कॉन्स्टिट्यूंसी पे हमारी पार्टी के जितने एमएलए है हर एक कने ग्राउंड से सब, तो अपन स्पोर्ट्स को इंकरेज करना साहब। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं एमएलए को,
28 और 29 को स्पोर्ट्स खेलने का मौका दिए। अरे साहब, हम तो खेलेंगे मगर साथ साथ अवाम को भी आप खिलाओ। हमारी ख्वाहिश ये है, यहाँ से बहुत प्लेयर निकल सकते साहब, यहाँ पे अच्छे से अच्छा वो पोटेंशियल है साहब, हमारे को वो देना है सर। और अच्छे कोच को अपॉइंट करना जरूरी है साहब, अगर अच्छे कोच अपॉइंट होंगे तो यहाँ से भी काफी प्लेयर निकल सकते हैं सर। उसी तरह सर बायोडाइवर्सिटी के अंदर साहब हमारे पास पार्क्स आते साहब, पार्क्स का मेंटेनेंस नील है साहब। पार्क के अंदर कोई भी वहां पे ना तो वॉचमैन रहता ना पानी डालने वाला रहता साहब। कई पार्क्स तो बन गए, पार्क के अंदर बोरवेल भी नहीं है साहब। ये सब चीज के लिए जरूरी है, आप अगर प्रोवाइड करेंगे पार्क के अंदर तो जरूरी रहेगा। आज हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करते सर, पार्क्स के अंदर आप ओपन जिम दे रहे हैं, बहुत अच्छा है सर, काफी लोग बेनिफिट उठा रहे हैं उससे। ओपन जिम को न सिर्फ देना सर, उसका मेंटेनेंस के लिए भी करना। एक टाइम के बाद दे देते, सामान टूट जाता, लोग वैसे ही रहते, पब्लिक उसको कचरे में डाल देती सर। तो कचरे में डालने के लिए आप उसको भी देखिए सर, देख के आप तवज्जो दीजिए सर। और एक चीज सर, जो मेजर आज वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट से जो प्रॉब्लम चलता सर, उसके ऊपर मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको कि आज वाटर वर्क्स के अंदर जो सुबह उठते ही हम लोगों को जो गुड मॉर्निंग का फोन आता, वो पोल्यूशन का फोन आता या सीवरेज का ओवरफ्लो का फोन आता सर। हम एमडी वाटर वर्क्स साहब से रिक्वेस्ट करते, एमडी वाटर वर्क्स साहब, मैं डिप्टी मेयर था सर, जब उन्होंने ईडी वाटर वर्क्स में थे, हमारे को बुला के एक वर्कशॉप क्लास ली है, बोले कि अगर वाटर वर्क्स को आएंगे तो डेली 24 आवर्स वाटर हम देने की कैपेसिटी है, सब समझाए। अब एमडी बन के आ गए, बात पता नहीं क्या हो गया साहब, कामा तो पूरे ठप हो गए साहब, पूरा यहां तक के साहब आप बिलीव करो या मत करो, एनुअल मेंटेनेंस वर्क स्लिप जो देते ना सर, वो अभी तक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की मिसाल देता हूं सर, वर्क स्लिप 2022 से 24 की पेंडिंग है, जिसकी तरफ से इमरजेंसी वर्क भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर रहा साहब। कैसा करेगा कॉन्ट्रैक्टर बगैर पैसे के, आप ये बताइए, और आप वर्क स्लिप भी नहीं देंगे तो काम कैसा होगा सर। तो मैं आपके जरिए से ये कहना चाहता हूं सर कि हर हमारे जितने भी एमएलए से उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, उसके अलावा शहर हैदराबाद में दूसरे भी है, उनके भी तवज्जो दीजिए सर। और मैं यही कहना चाह रहा हूं सर आपसे कि आप यहां पर जो बना दिए हैं सर, अपने पास में सब चीज बनाए हैं, उसके ऊपर भी आपको तवज्जो देना है। 3 कॉर्पोरेशन बना दिए, अच्छी बात है। चार मीनार के बारे में मैंने बोला सर, सबसे अहम मसला सर, चार मीनार कने टॉयलेट्स नहीं है सर। टूरिस्ट आया तो उसको टॉयलेट नहीं है सर, कहीं ना कहीं आप अच्छे से पेंट यूज क्यों ना होता सर, लगाइए सर, ताकि टूरिस्ट जाएगा तो कहां जाएगा सर, उसमें सर टॉयलेट वो बनाइए सर। और एक चीज सर, रोड वाइंडिंग तो हो जाती है, रोड वाइंडिंग के साथ 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 हमारे पास बस बे बनाना जरूरी है साहब, बस शेल्टर होना जरूरी है साहब। आज आप देख रहे हैं क्या आलम है साहब, डीजल पेट्रोल का, जहां जा रहे हैं वहां, मैं घर से निकल के आया साहब, 10 पेट्रोल पंप बंद थे। 11th में मैं एक जगह कहीं दिखा तो थोड़ा डला लिया साहब, क्यों कि फिर भी क्या है कि क्या नहीं कि होम, अपन तो बोल रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर चलते चलते गाड़ी रुक गई तो हमको प्रॉब्लम आ जाता साहब। तो इसके लिए मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं सर कि खास तौर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर अपन डेवलप करेंगे सर, बस भी अच्छे रहेंगे, बस शेल्टर अच्छे रहेंगे रोड के ऊपर, तो बहुत सहूलत रहती सर, उसको भी बनाने की जरूरत है सर। और जैसा चार मीनार के अंदर सर, फतेह दरवाजा, हुसैनी अलम, वजीर अली मस्जिद, कोका की टट्टी, वार्ड ऑफिस, ये सब और दूसरी चीज सर, जितने कारवान में पेंडिंग वर्क है सब, जियागुड़ा, स्लाटर हाउस, रेती बोली तो ये तो मैंने बोल दिया, इंडोर स्टेडियम है सब, एमडी लाइंस का सब, बगदाद कॉलोनी में, कारवान पनीपुरे में है सर, उसको भी देना सर। गोलकुंडा कटोरा हाउस एचएमडीए का है सर, उसको करना सर। टोली चौकी टू हकीमपेट रोड वाइंडिंग है सर, हकीमपेट टू अपोलो हॉस्पिटल रोड वाइंडिंग है सर, टप्पा चबूतरा तो जीरा रोड वाइंडिंग है सब, टोली चौकी टू अकबर लैंड, टोली चौकी टू 7 टॉप्स, हकीमपेट सना टू एमएलए कॉलोनी, पुराना पुल टू टप्पा चबूतरा, सैनिटेशन न्यू, ये सब कारवान की जरूरत है सर। तो आप इसको कारवान में भी दीजिए सर। उसी के साथ साथ सर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी सब रोड वाइंडिंग 2-3 हुए सर,
मगर वर्क बहुत स्लो हो रहा सर। शेख फैज की कमान का है, याकुतपुरा बड़े बाजार से रहमानिया का है, रेन बाजार का है, उसी तरह सर और भी है सर, वहां पर भी करना जरूरी है सर। बातुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर फातिमा नगर, फारूक नगर, आसमानगढ़, अली जुबैर कॉलोनी, कबीर नगर, यहाँ पे सब पोल्यूशन है सर। ये पोल्यूशन को भी दूर करिए सर। जैसा बताए सर, स्ट्रीट लाइट का भी इनका ने भी काफी प्रॉब्लम है। किशन बाग, असद बाबा नगर, कोंडा रेड्डी नगर, नजीम नगर, अच्छी रेड्डी नगर, चंदूलाल बारादेरी और न्यू ट्रांसफार्मर्स की जरूरत है सर। तो ये चीज है सर। और नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में सर रोड वाइंडिंग जो है ना सब, सरोजनी देवी हाई हॉस्पिटल से ख्वाजा मेंशन सब, रॉयल रीजेंसी फंक्शन हॉल से आसिफ नगर सर, टप्पा चबूतरा रोड से सर डेली ट्रैफिक कंजेशन हो रहा सर। सीताराम बाग से दारुसलाम सर, और दूसरा नोबुल जंक्शन से लेके सर कोर्ट ये है सर। और इसके अंदर यही बता रहे हैं सर, नोबुल जंक्शन क्रॉस रोड के ऊपर सर वहां पे जंक्शन इंप्रूवमेंट है, कोर्ट केस पेंडिंग है बोल के बोल रहे हैं सर, उसको करिए सर। और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सर नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल है सर, मल्टीपर्पज फंक्शन हॉल है सर, उसको कराइए सर कंप्लीट। हाशम ग्राउंड के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है सर, उसको कंप्लीट कराइए सर। और एक चीज जैसा मैं आपको बताया, मेन बीटी रोड्स का है नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसको देखिए सर। उसके अलावा मेहदीपट्टनम पे सर एक बहुत दिन से HMDA की तरफ से स्काई वे बन रहा, बहुत खूबसूरत बन रहा सर, वो डिले हो रहा सर, उसको भी आप कराए तो बहुत अच्छा रहेगा सर। मैं आपको यही कहना चाहता हूं सर। इसके साथ साथ सर नामपल्ली के अंदर जी सर अभी तो देखिए सर म्यूनसिपली हुआ सर, 10 डिमांड आप मेरे हाथ को दे दिए, जिसमें म्यूनसिपल इंपॉर्टेंट है सर। 2-4 डिमांड और बोलूंगा सर, मेरे को मालूम है सर इधर देखो हम लोग खुद आपको ऑलमोस्ट सपोर्ट करते हैं सर। हमारा एक ही रिक्वेस्ट है सर, इसमें भी बोलने नहीं देंगे, क्वेश्चन आवर्स भी हमारा आप नहीं अलाउ करेंगे, तो हम बोलना तो कहां बोलना सर? क्या हम जाके तो वहां नहीं बोलते ना सर? मीडिया पॉइंट पे जो बोलना है आपको बोलते साहब, हमको मौका दीजिए साहब। इसीलिए दीजिए मौका कि ये बोलना हमको इसीलिए जरूरी है ताकि आपके जरिए से हुकूमत को मालूम होता सर, जितने भी नाले हैं सर, नालों को आप तवज्जो देना जरूरी है सर। मैं होम डिपार्टमेंट पे आता हूं सर। आज होम डिपार्टमेंट का हाल क्या है सर आपको मालूम है सर, आप जानते हैं सर। हर जगह सर आप अगर देखते हैं तो सर ड्रग्स कॉमन होते जा रहा सर, ड्रग्स इतना कॉमन हो रहा सर। स्पेशली गरीब लोकेलिटी के अंदर सर माया बहुत परेशान है सर, मां बहुत परेशान है सर ड्रग्स की तरफ से। तो मैं आपके जरिए से हुकूमत को ये कहना चाहता हूं, इसके ऊपर कंट्रोल करना जरूरी है सर। खैर हुकूमत सर पकड़ ली, मगर कहां पकड़ ली सर? बड़े बड़े लोगों को पकड़ ली, अपनी फोटो आ रही सर। इधर देखो जो असल गरीब है सर, आज घरों में जाके माओं को इतना तंग कर रहे हैं साहब, स्पेशली जो लोकेलिटी से। मैं ये नहीं समझता कि साहब पुलिस को नहीं मालूम है कहां से ड्रग्स आता और कहां से मिलता, मालूम है। जो इंस्पेक्टर के अलावा जो सेक्टर SI होता सर, सबसे पहले सेक्टर SI किससे दोस्ती करता साहब? जहां पे सट्टा चलता, जुआ चलता, शराब बिकता, ड्रग्स बिकता, उनसे दोस्ती करता है सर, और मासूम लोगों को सताते हैं सर। इसके ऊपर तवज्जो देना होम डिपार्टमेंट को जरूरी है साहब। आप अगर अपने माशरे को आज नहीं आप सही करेंगे तो कल आने वाले दौर के अंदर साहब सबको परेशानी होगी। जैसा आज होम डिपार्टमेंट के अंदर मैं कहना चाहता हूं, आपके जरिए से होम डिपार्टमेंट को कहना चाहता हूं सर, आज मर्डर्स कितने हो रहे हैं ये देखो साहब। ये मर्डर क्यों हो रहे हैं ये भी तो देखो आप। मर्डर इसलिए हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी पुलिस जो है सर आराम से सो रही है, एक काम जरूर कर रही है सर, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो या ट्रैफिक पुलिस हो सर, फोटो जरूर लेते सर। हम लोग भी अगर कोई प्रोग्राम में जाते तो लॉ एंड ऑर्डर का भी जवान का काम क्या है साहब, आ जाता सीधा फोटो लेता हमारी, हमको खुद समझ में नहीं आता कहीं को लेता फोटो हमारी, ये नहीं मालूम। कोई इनाग्रेशन को जाओ फोटो, कहीं भी जाओ फोटो, यहां तक के हद तो हो गई सर, सिर्फ ये पुलिस डिपार्टमेंट को फोटो डिपार्टमेंट कर दिया तो ज्यादा बेहतर है साहब। अब मैं लास्ट टाइम भी सर मैंने आपसे कहा था आपके जरिए से हुकूमत को, ट्रैफिक पुलिस हद से ज्यादा चालान कर दी रही साहब, गरीबों बहुत परेशान है साहब, बहुत ज्यादा परेशान है। आज मैं बेशक LA मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं, लास्ट टाइम तो आपने कहा कि 0 आवर्स में कैसे चालान माफ करेंगे साहब, आज तो कर दो साहब, कम से कम खुश हो जाएंगे साहब। साहब अगर आप 75% ऑटो वाले वैसे परेशान है, सुबह से लेकर रात तक गैस की लाइन में ठहरे हुए ऑटो वाले साहब, रोजगार नहीं चल रहा साहब, 75% वन टाइम सेटलमेंट कर दो साहब, एक बार मौका दे दो, और 50% 4 व्हीलर
और टू व्हीलर को दे दो साहब। आप लोग अगर चाहेंगे ना साहब तो हो सकता है वो अपने को कोई अपन जेब से दिए तो नहीं है साहब, एडिशनल आमदनी है, हम गलती करे बोल के मार रहे हैं, कहीं की गलती नहीं मालूम, पट 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 फोटो मार रहे हैं साहब। आज करा दो साहब, आज आप कर देंगे तो बेशक ये गवर्नमेंट का भी नाम होगा। और हमारे को बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं कि साहब आप उस दिन क्वेश्चन तो उठाए, हमारे एलए मिनिस्टर साहब तो बोले कि मैं बात देखता हूं, मैं बात करता हूं, क्या हुआ साहब? मैं बोला नहीं, आज मेरा क्वेश्चन है, मैं वापस रिक्वेस्ट कर लेता हूं, शायद आज हमदर्दी आ जाएंगी और ये काम के ऊपर तवज्जो देंगे। मैं इसीलिए आपके जरिए से ये कहना चाहता हूं साहब, आज होम के अंदर भी बहुत है साहब। जैसा आज ट्रैफिक के सिग्नल का मसला है साहब, ट्रैफिक का सिग्नल जो है ना सर, वो जीएचएमसी लगाती साहब, और होम जो पुलिस वाले हैं उसको देखते हैं सर। तो जीएचएमसी को बोलिए ना साहब, ट्रैफिक सिग्नल्स लगाइए, बोलिए कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं आप खुद देख लीजिए, एक्सीडेंट भी कम हो जाएंगे। एक्सीडेंट को कम होना है तो आपको लगाना जरूरी है सर। और जहां पे भी एक्सीडेंट जोन रहता ना साहब, वहां पे फ्लैशर्स लगाइए या कुछ और हिसाब से आप करिए तो ज्यादा बेटर रहेगा साहब। तो मैं आपके जरिए से होम के अंदर यही कहना चाहता हूं साहब, होम में तो बातें करने के लिए बहुत है सर, मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि शहर हैदराबाद में राउडीज्म को कम करिए साहब, और शहर हैदराबाद के अंदर ड्रग्स को टोटल खत्म करिए साहब। जो सहूलत होना है, हम इलेक्टेड मेंबर आपके साथ है साहब। हमारे पास आज रोज ऐसे ऐसे केसेस आते साहब, माया आके रोते हैं, मेरा बेटा आके मार रहा, मेरे को नहीं सुन रहा, पैसे नहीं दिए तो उठा के पत्थर से मार रहा और कोई राड से मार रहा। तो साहब आप इसके ऊपर तवज्जो दीजिए, क्योंकि जो काबिल आदमी होता, पढ़ा लिखा होता, वो कहीं भी शौक कर लेता साहब। गरीब आदमी को पैसे नहीं मिले तो उन्हें कुछ भी कर सकता। उसके लिए आप देखिए। और एक साहब आज जो चल रहा साहब, साइबर क्राइम का बहुत बड़ा मसला हो गया साहब। इसके अंदर साइबर क्राइम में क्या क्या आता है, तो साइबर क्राइम के अंदर जो मेजर आज जो चल रहा साहब, सीधा सीधा आपके अकाउंट में अगर पैसे है तो बाहर के उससे लोग गलत उसको करते हुए यहां से आपका पूरा पैसा चले जा रहा। साइबर क्राइम को कुछ ऐसा करिए, क्योंकि यहाँ पे होम सेक्रेटरी साहब भी मौजूद है, मैं जानता हूं उनकी काबिलियत के बारे में, तो वो अगर चाहते हैं तो साइबर क्राइम कंप्लीटली खत्म हो सकता साहब। साइबर क्राइम को खत्म कराना है साहब। गरीब आदमी जो शादी के पैसे रखे हुए साहब, पूरे के पूरे पैसे चले आ रहे हैं, जो इलिटरेट रहते, मालूम नहीं रहते, उन लोगों से ओटीपी पूछ रहे हैं, कोई भी चीज की लालच दे रहे हैं और वो लालच के ऊपर उन्होंने चले जा रहे हैं साहब। उसके ऊपर अपने को बेशक तवज्जो देने की जरूरत है साहब। आप अगर ये करेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा काम हो जाएगा साहब। मैं यही आपके जरिए से हुकूमत को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं साहब। हमारी पार्टी के फ्लोर लीडर भी कई मर्तबा रिक्वेस्ट करे साहब, एक बार नहीं कई मर्तबा रिक्वेस्ट करे। मैं आपसे और एक चीज सर, ये तो होम का है, आप लोग बेहतर जानते हैं साहब, आपको राउडीज्म खत्म करना है, जो मर्डर्स हो रहे क्यों हो रहे उसकी रोकथाम करना है, ड्रग्स के ऊपर आपको तवज्जो देना है, साइबर क्राइम पे तवज्जो देना है सर। ट्रांसपोर्ट का मसला सर, मैं हुकूमत को मुबारकबादी देना चाहता हूं सर। औरतों के लिए, लेडीज के लिए फ्री बस करे साहब, बहुत जबरदस्त काम है साहब। काफी लोग उसको पसंद भी किए हैं सब, औरतों का फायदा भी हुआ है। कैसे फायदा हुआ सर, अगर फर्ज करो साहब डिस्ट्रिक्ट से या कोई छोटे विलेज से औरत अगर शहर में कोई शॉपिंग करने आना चाहती तो आराम से बस में आ रही, शॉपिंग करके जा रही, या अगर 4 सिस्टर्स या 4 लोग खानदान के मिलके कहीं दावत में जाना है जा रही, हर चीज हो रही साहब। बहुत अच्छा काम है साहब, इसमें हम कुछ भी ये नहीं कहते सर, जो काम अच्छा है वो बेहतर काम है। मैं सीता अक्का से भी कहना चाहता हूं कि बेस्ट काम है जो आरटीसी वुमेन्स फ्री हुआ, सीता का उसमें बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है, बहुत जरा जबरदस्त बेनिफिट हुआ है, उसको होना भी चाहिए। और काफी लोग सब इससे बेनिफिट उठा रहे साहब, नहीं उठा रहे बल्कि नहीं, मगर अनफॉर्चुनेटली साहब आपके जरिए से कहना चाह रहा हूं, जो महरूम है सर वो ओल्ड सिटी वाले है साहब। ओल्ड सिटी में रोडां छोटे रहते, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब को हम कई बार रिक्वेस्ट करे साहब, छोटे मिनी बसेस डालो साहब। हमारे पास भी औरतें घूमना चाहते साहब, आपकी बस में जाके कहीं दावत में जाना चाहते, आपकी बस में बैठ के कहीं जाना चाहते साहब, आप उसको भी दीजिए साहब। आप पलट के उसमें कुछ नहीं कर रहे सर, सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों के लिए नहीं। तो मैं ये चाहता हूं सर कि आप इस पे नोट लेके मिनी बसेस डालिए सर। इसके अलावा और जो रूट पे बसेस कम है सर, जैसा नामपल्ली के अंदर जो पुराने बसेस चलते थे साहब पहले, जो रूट थी
वो रूट बंद हो गई साहब। याकुतपुरे से कुछ पुरानी रूट थी वो बंद हो गई साहब। उसके अलावा मेहदीपट्टनम कारवान की रूट थी वो बंद हो गई, गोलकुंडा कुर्ले की रूट थी वो बंद हो गई। ये सब बंद हो जाने से कैसा होगा साहब, वो नए बड़े बसेस भी बढ़ाइए और उसके साथ साथ छोटे बसेस भी को आप दीजिए, सब तवज्जो दीजिए तो ही सही होगा। अगर आप इस पर तवज्जो नहीं देंगे तो कैसा होगा साहब, आप ये भी सोचिए। सिटी के अंदर आप बहुत जरूरी है सर, और मैं जैसा बोला आपको बस शेल्टर की भी जरूरत है। अब नया सवाल बैकवर्ड क्लास वेलफेयर भी बनाए सर। fulfill its election promises, the Congress government has conducted the caste survey in the state, sir. As per the caste survey data, the backward classes account for 56.36% of the total population, sir. The state has also enacted 2 bills of enhancing of the reservation in the Panchayat Raj and urban local bodies and also in the educational institute and the government recruitment, sir. Both the bill were sent to the central government for the president assistant, and this bill are stuck up there with no words of their faith. I would request the government to take up the issue with the central government to clear these 2 bills at the earliest, since the enhanced reservation are not being implemented for the BCs in elected bodies as well as the educational course and the government implement. Financial assistance is provided to the BC from the BPL families by 21 corporations and the cooperative federation and the different caste among the BCs. A special welfare board has also been formed for the EBC in the state. The budgetary allocation has been enhanced to rupees 4,134.81 crores for this corporation and federation, including the 1,750 crores for the Rajiv Vikas scheme and 648.31 crores for the BC Cooperation Finance Corporation and the 42.35 crores for the NBC Development Corporation. I would request the government to ensure that the economic support scheme for the BC are implemented effectively and assisted in the providing to the beneficiaries without delay in the progressing of the verification of their application, sir. तो मैं आपके जरिए से यही कहना चाहता हूँ सर, पंचायत और रूरल डेवलपमेंट का सर, the government has recently conducted the election 123 municipalities and municipal corporation in the state, sir. There are few of municipality and municipal corporation where the terms of elected bodies ended during the February, and also the terms of GHMC elected body also ended, and now there are 3 corporation in the core urban region. I would like the government to announce the time frame for the conducting of poll to GHMC, Cyberabad and Malkajgiri and other municipal corporation and municipalities in the state. I may recall the government has also conducted the election to the Gram Panchayat in the state during December 2025. However, the election to the Mandal Praja Parishad and the Zilla Parishad are yet to be conducted through the terms of the elected bodies ended in July. Sir, ये MPP और ZPP का इलेक्शन कराना है सर जल्द से जल्द. I would like the government to announce the timeline of the conductor of the MPTC, ZPTC and MPP and the Zilla Parishad election in the state. In the absence of the elected body, the grant of the central government under the Finance Commission are not being released to the MPP and ZPP. Major welfare scheme of the government is implemented by the Rural Development Department, and these inducted sector scheme such as the Vadula, Ranulu, Chetula pension and elderly widows, single widow, disabled, BD worker, fairly and the kidney patient. सर मैं ये बोलना चाहता हूँ जो पेंशन की बात आ रही है सर, आपने आसरा पेंशन को हटा देके च्योता पेंशन किया सर. ये पेंशन सही बात है सर, मगर आपने प्रॉमिस किया था सर 4,000 रुपए देंगे. 4,000 रुपए तो आ रहे नहीं सर. जब से आपका 2 साल का पीरियड हुआ सर, 2 साल से लेके आज तक एक भी विडो पेंशन एक्सेप्ट नहीं हुआ, एक भी ओल्ड एज पेंशन एक्सेप्ट नहीं हुआ और कुछ भी नहीं हुआ. तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आप उसके अंदर भी तवज्जो देना और पेंशन दीजिए साहब. 4,000 रुपए दीजिए. क्या हुआ, हुकूमत दे सकती, जब वादा करके आई तो लोग इंतजार कर रहे हैं साहब. आप उसको पेंशन दीजिए और नए पेंशन सैंक्शन करिए साहब. नए पेंशन अगर आप सैंक्शन करेंगे तो बेहतर रहेगा सर. और द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस इंदिरम्मा Atmiya Bharosa scheme for providing assistance of rupees 12,000 annually to the landless agriculture families. On this scheme was implemented in the current financial
year itself. I would request the government to implement the scheme from the April 1st as a budgetary allocation has been made in the next year budget also. तो मेरा आपके जरिए से सर एक ही है, क्योंकि डिमांड्स ऑफ ग्रांट ऑफ गवर्नर काउंसिलिंग है सर, ये चीज को तो मैं बाजू रखते हुए आपसे ये कहना चाहता हूं साहब, मेरी पार्टी के जानिब से जितने भी डिमांड्स दिए हैं सर उसको करिए। और खास तौर से जो रिजर्वेयर के बारे में हमने बताया सर, रिजर्वेयर का मैं तो ऑलरेडी बोल चुका हूं सर, फिर एक मर्तबा यही है कि हमने जो रिजर्वेयर के दिया है आपको, उस रिजर्वेयर को जल्द से जल्द कंप्लीट कराइए सर। वाटर रिजर्वेयर जो फीडर लाइन से नामपल्ली, कारवान, बहादुरपुरा, चारमीनार, याकूतपुरा एंड चंद्रायनगुट्टा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का सर, मैंने आपको बोला सर रिजर्वेयर अगर हो जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा सर। मैं आपके जरिए से फिर एक मर्तबा शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं हमने जो डिमांड्स उठाए हैं इस डिमांड को न सिर्फ आप फुलफिल करेंगे बल्कि हमारे जो भी पार्टी फ्लोर लीडर आपको नुमाइंदगी कर रहे हैं उसको भी मुकम्मल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर पालवाई हरीश बाबू। అధ్యక్ష, ఇవాళ 10 పద్దులు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. నేను అందులోకి వెళ్ళి 6 పద్దుల మీద మాట్లాడతా అధ్యక్ష. మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషను, హోమ్ డిపార్ట్మెంటు, ఆర్టీసీ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టు, పంచాయత్ రాజు, రూరల్ డెవలప్మెంటు, ఉమెన్, చిల్డ్రన్ అండ్ డిసేబుల్డ్ వెల్ఫేర్. ఎక్కువ టైం తీసుకోను, నేను ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చిన కాబట్టి ఎక్కడ రిపిటేషన్ కూడా ఉండదు అధ్యక్ష. దయచేసి వినండి. ఇట్ విల్ బి constructive, it will be useful for the treasury benches, it will be useful for your officials అధ్యక్ష. It will be. ఇవాళ రాష్ట్రంలో హరీష్ బాబు గారు హాఫ్ అన్ అవర్ లో కన్క్లూడ్ చేయండి సార్. మా ఎంఐఎం మిత్రులకు మీరు ఎంత సమయం ఇచ్చారో అంతే సమయం తీసుకుంటాం. మాకు అందుకన్నా ఒక సభ్యులు ఎక్కువనే ఉన్నారు. 37 minutes లో కంప్లీట్ చేసి సరే, ఐ విల్ ట్రై టు. GHMC try for